بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرد اور خواتین سوتے وقت کان میں لہسن کیوں رکھتے ہیں اور خصوصاً عرب مرد اور خواتین ایسا کیوں کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے کان میں لہسن کا ایک ٹکڑا رکھنے سے کیا ہوتا ہے، اثرات جان کر آپ کی حیرت کی بھی انتہا نہیں رہے گی۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آپ نے لہسن کے فوائد کے بارے میں تو کافی بار سن رکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اگر رات کو سونے سے قبل کان میں لہسن کا ٹکڑا رکھا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آپ بھی اگلی بار ایسا ضرور کریں گے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ لہسن ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے اور اس کی وجہ سے جسم میں کئی طرح کی بیماریاں کم ہوتی ہیں اور سوجن سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ کو کان میں تکلیف ہو تو رات کو سونے سے قبل لہسن کے ایک ٹکڑے کو کاٹ کر کان میں رکھ لیں۔ جب آپ اٹھیں گے صبح کے وقت تو کان میں درد اور تکلیف مکمل دور ہو چکی ہوگی۔ جو جراثیم کان میں انفیکشن کا باعث بنتے ہیں، لہسن انہیں ختم کر دیتا ہے۔ یہ نسخہ جرنل آف میڈیکل سائنس میں ایک چینی ماہر نے اپنے مقالے میں شائع کیا تاکہ اگر کسی قسم کی الرجی ہو تو اس نسخے کو آزمانے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں اور بچوں پر نہ آزمائیں۔ لہسن کے بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے ایک فائدہ تو یہ جیسا کہ بتایا کہ کان میں اگر درد ہے تو کسی بھی قسم کے درد کو لہسن جو ہے وہ دور کر دیتا ہے، سارا درد جو ہے اس میں سے کھینچ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی لہسن کے بہت سے حیرت انگیز فوائد ہیں۔ ویسے تو لہسن پاکستان میں بیشتر کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چند افراد اس کے فوائد کے بارے میں جانتے ہیں، زیادہ تر افراد نہیں جانتے۔ اگر آپ بھی ان افراد میں سے ایک ہیں تو لہسن کے یہ فوائد چند حیران کن فوائد جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ بھی سن لیجئے تاکہ کسی بھی موقع پر آپ کے کام آئیں گے۔ لہسن آپ کے بالوں کو گرنے کے مسئلے کو ختم کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں شامل ایک جز ایلیسین کی بھرپور مقدار ہے۔ یہ سلفر کمپاؤنڈ پیاز میں بھی پایا جاتا ہے اور ایک طبی تحقیق کے مطابق بالوں کے گرنے کی روک تھام کے لیے مؤثر ہے۔ لہسن کو کاٹ لیں اور اس کی پوتھیوں کو سر پر ملیں۔ آپ تیل میں بھی لہسن کو شامل کر کے مساج کے ذریعے یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیل مہاسوں کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیل مہاسوں کے لیے ملنے والی ادویات کا مرکزی جز تو نہیں، مگر لہسن کا ایک قدرتی علاج ضرور ہے جو کیل مہاسوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں، تو لہسن کی پوتھی کو کیل مہاسے پر رگڑنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نزلے زکام کی روک تھام کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونے کے باعث آپ کی غذا میں لہسن کی شمولیت جسم کے دفاعی نظام کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر نزلہ زکام کا شکار ہو جائیں تو دل مضبوط کر کے لہسن کی چائے پی لیں۔ اسے بنانے کے لیے لہسن کو پیس کر پانی میں کچھ منٹ تک ابالیں، اس کے بعد چھان کر پی لیں۔ آپ اس میں تھوڑا سا شہد یا ادرک بھی ذائقے کو بہتر کرنے کے لیے شامل کر سکتے ہیں۔ آپ وزن کو کنٹرول کریں۔ لہسن جسمانی وزن کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق لہسن سے بھرپور غذا سے چربی کے ذخیرے اور وزن میں کمی ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے لہسن کو روزانہ اپنی غذا کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ پاؤں یا جسم میں پھنسی لکڑی کے ریشوں کو نکالنے کے لیے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لہسن کے ایک ٹکڑے کو متاثرہ جگہ کے اوپر رکھ کر اسے بینڈیج یا ٹیپ سے کور کر لیں۔ اگر پاؤں میں پھانس چبھی ہے تو جرابوں کو چڑھا لیں اور رات بھر آرام کریں اور صبح اسے ہٹا دیں۔ پھانس کے ساتھ ساتھ درد
और सूजन भी खत्म हो जाएगी। साइंसदान इस पर यकीन तो नहीं करते और ये भी नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है, मगर ऐसा नजर आता है कि मच्छरों को लहसुन पसंद नहीं। अगर तहकीक में ये बात देखी जाए तो ये बात सामने आई है कि जो लोग लहसुन के पेस्ट को अपने हाथों और पैरों पर मल लेते हैं उन्हें मच्छरों का डर नहीं रहता। इसके लिए आप लहसुन के तेल, पेट्रोलियम जेल और मोम को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना लें जो मच्छरों से तहफ्फुज देने वाला कुदरती नुस्खा साबित हो सकता है। शदीद ठंड में होठों का फट जाना या जख्म हो जाना काफी आम होता है, तो उसके इलाज के लिए पिसे हुए लहसुन को कुछ देर तक मुतासरा जगह पर आप लगाए रखें। इसमें शामिल कुदरती सूजन कुछ जो खुसूसियात हैं वो दर्द और सूजन कम करने में मदद देती हैं। लहसुन कुदरती ग्लू भी है। क्या आपने कभी गौर किया कि लहसुन को काटने के बाद उंगलियां किस तरह चिपकने लगती हैं? उसकी ये कुदरती खूबी उसे शीशे के मामूली क्रैक को ठीक करने में मदद देती है। इसके लिए लहसुन को पीस लें और इसके अर्क को क्रैक पर रगड़ें और ऊपर नीचे के हिस्से को साफ कर दें। पौधों को तहफ्फुज फराहम करें। बागों में पाए जाने वाले जो कीड़े हैं लहसुन को पसंद नहीं करते। इसकी मदद से एक कुदरती पेस्टिसाइड तैयार कर लें, जिसके लिए लहसुन, मिनरल ऑयल, पानी और लिक्विड साबुन को एक स्प्रे बोतल में आपस में मिला लें और पौधों पर छिड़क दें। लहसुन सूजन कुछ अज्जा से भरपूर है, इसलिए ये अचानक होने वाली खारिश से रिलीफ भी दे सकता है। लहसुन के तेल की कुछ मिकदार को मुतासरा जगह पर इस्तेमाल करें तो वहां खारिश खत्म हो जाएगी। अगर खाली पेट लहसुन इस्तेमाल किया जाए तो इसके भी हैरत अंगेज फवायद हैं। खाली पेट लहसुन आप इसे इस्तेमाल करें, लेकिन इसका तरीकाकार भी आपको मालूम होना चाहिए। जमाना कदीम से इंसान लहसुन का इस्तेमाल करता आया है और आज भी इस्तेमाल किया जाता है। रोमन, मिस्री, ईरानी, यहूदी, अरब और दुनिया की तमाम अक़वाम ने लहसुन के फवायद पर सैर हासिल गुफ्तगू की है और किसी ने आज तक इसके इस्तेमाल को खतरनाक नहीं कहा, जबकि इसे मिसाला जात का सरदार भी कहा गया है। लेकिन आज हम आपको लहसुन के खाली पेट इस्तेमाल के फवायद बताएंगे। अगर आप लहसुन को खाली पेट खाते हैं तो पेट में मौजूद बैक्टीरिया पेट खाली होने की वजह से बहुत कमजोर हो चुके होंगे और ये लहसुन की ताकत के खिलाफ लड़ नहीं पाएगा, जिससे आप सेहतमंद और कई बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। इसे खाली पेट खाने से जिस्म का मुदाफियाती निजाम मजबूत होता है और इंसानी जिस्म बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत हो जाता है। लहसुन एक कुदरती एंटीबायोटिक है और सर्दियों में इसके इस्तेमाल से इंसान खांसी, नजला और जुकाम से महफूज रहता है। ये खून को पतला करता है, जिससे आपका निजाम में दौरान खून तेज रहता है और इसके साथ साथ आपको बुलंद फिशारे खून से भी निजात मिलती है। अगर आपकी खून की शरियानें बंद होने लगें तो रोजाना खाली पेट लहसुन का इस्तेमाल करें। बहुत जल्द आपको महसूस होगा कि आपकी तबीयत बहाल हो रही है। अगर आपको जल्दी जो है वो कोई किसी मसला पेश आ जाता है जिल्द के हवाले से, यानी जल्दी बीमारी का मसला दरपेश हो जाता है, तो खाने में लहसुन की मिकदार बढ़ा दें। इससे आपके जिस्म में जहरीले मादे कम होंगे और जिल्द तरोताजा रहेगी। अगर आसाबी कमजोरी का मसला हो तब भी लहसुन इंतहाई मुफीद साबित होता है। यहाँ पर हम आपको दूध और लहसुन के मशरूब के फवायद के बारे में भी आपको बताएंगे। दूध में अगर आप लहसुन मिलाकर तैयार किया जाने वाला मशरूब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बीमारियों और सेहत के लातादाद मसाइल से छुटकारा दिलाता है। दूध में लहसुन मिलाने का ख्याल शायद आपको अजीब सा लगे और आप ये भी सोचें कि ऐसा करने से दूध फट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये कुदरती मशरूब आपकी सेहत को बेमिसाल फायदे पहुंचाएगा। आपने जो अज्जा लेने हैं वो लहसुन के जुए 10 अदद, दूध आधा लीटर, शक्कर 2 से 3 चाय के चमचे और उसमें पानी आपने 250 मिलीलीटर मिला लेना है। सबसे पहले आपने लहसुन के जवों को अच्छी तरह से कुचलकर पेस्ट जैसी शक्ल में बना लेना है
और उसमें फिर एक बर्तन में दूध और पानी डालकर उसमें लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इस बर्तन को दरमियानी आंच पर गर्म करें और गर्म करते दौरान चमचे से हिलाते रहें यहां तक कि सारा आमेजा उबलने लगे। अब चूल्हा बंद करके इस आमेजे को छान लें और इसमें शक्कर मिला लें। ध्यान रहे कि लहसुन और दूध का ये शरबत आपको नीम गर्म हालत में पीना चाहिए। इस तरीके पर अमल करते हुए रोजाना लहसुन वाले दूध का मशरूब बनाएं और दी गई हदायत के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। यानी जो भी आपको हदायत दी गई हैं उसके मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है। ये जिन जिन चीजों में फायदेमंद है उसमें से 4 फायदे नुमाया हैं। सबसे पहला फायदा तो खांसी का इलाज है, कोलेस्ट्रोल पर कंट्रोल है, दमे का इलाज है और जोड़ों के दर्द और गठिया का इलाज है। इसके अलावा और भी फायदे हैं जिनमें अमराज कल्ब शामिल है, नमूनिया से तहफ़्फ़ुज़ है, बेख्वाबी से बचाव है, आज़मे में मदद है, फेफड़ों की टीबी का इलाज है और यरकान भी है, असाबी दर्द में कमी भी शामिल है। इसके लिए आप जो भी बीमारी है उसके मुताबिक आप उसे इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर खांसी है तो इस मशरूब में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से न सिर्फ मामूल की मौसमी खांसी में अफाका होता है बल्कि वो खांसी जो तवील मुद्दत से लाहक हो और जान न छोड़ रही हो उसकी शिद्दत में भी नुमाया तौर पर कमी आ जाती है। कोलेस्ट्रोल पर कंट्रोल भी पैदा होता है। ये मशरूब खून में मुज़र चिकनाई LDL को घटाता है जबकि मुफीद चिकनाई SDL में इजाफा करता है, यानी जिस्म में कोलेस्ट्रोल कंट्रोल करने में बेहतरीन है। जोड़ों के दर्द और गठिया का इलाज भी किया जा सकता है। लहसुन वाले दूध का रोजाना इस्तेमाल जोड़ों में सोजिश के अलावा गठिया के दर्द में भी कमी लाता है। दमे से छुटकारा पाने के लिए ये मशरूब पीने के अलावा रात को सोने से पहले लहसुन के 3 जवे खाएं जिससे बहुत अफाका होगा। LDL कहलाने वाली चिकनाई कोलेस्ट्रोल मुज़र सेहत होती है और हाई ब्लड प्रेशर के अलावा दिल की बीमारियों की वजह भी बनती है। ये मशरूब LDL को कम करते हुए दिल को तकवीयत भी पहुंचाता है। बेहतर नताइज के लिए लहसुन वाला दूध तैयार करके कम चिकनाई वाला दूध भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको मालूम हुआ होगा कि किस तरह से आप लहसुन को इस्तेमाल कर सकते हैं।